Hello everyone, welcome back to my channel R&M The Football Boys और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अखिल रॉय द फुटबॉल बॉय। होप करता हूं कि आप सब ठीक हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं इस कोविड-19 की सिचुएशन में। तो गाइस आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बिगेस्ट सागा गोइंग ऑन राइट नाउ इन द फुटबॉल इंडस्ट्री एंड दैट इज़ Lionel Messi versus Barcelona board. So without wasting any time, let's start this video. So guys, आज हम बात करेंगे बार्सिलोना के डाउनफॉल की। ये कब, कहाँ, कैसे आया और इसे कैसे काउंटर किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया। और ये डाउनफॉल इतना इम्पैक्टफुल था कि इसने क्लब के ग्रेटेस्ट लेजेंड, द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर एवर, लियोनेल मेसी का माइंड बना दिया बार्सिलोना को छोड़ने का। तो गाइस, all things started back in 2014 where Josep Bartomeu got selected as Barcelona president. Josep Bartomeu को क्लब का ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट बनना था, इन्हें खुद की एक लेगेसी सेट करनी थी। और बदले में इन्होंने क्या किया, I'll tell you। जब यूसुफ बार्टोमेउ बार्सिलोना के प्रेसिडेंट बने तब बार्सिलोना की स्टार्टिंग 11 कुछ ऐसी दिखती थी। लुक्स प्रीटी गुड राइट, विनिंग टीम है। बट इन्होंने इस सीज़न में चैम्पियंस लीग, ला लीगा, डोमेस्टिक कप मतलब ट्रिपल जीता। एंड आफ्टर दैट everyone thought everything's going to be very amazing, future is secured. But जैसे ही 2014 and 15 से सीज़न ख़त्म हुआ, Xavi Hernandez, the captain of club at that time, announced his retirement. First impact to the squad. And after that, suddenly, Dani Alves, one of the greatest right back or defender you can say, from Brazil, left Barcelona for Juventus. And guess what guys? There was no replacement. Suddenly team got shaken. I don't know what happened to Barcelona board that they were so lazy in transfers. They became lazy or they were lazy. कह नहीं सकते। यूसुफ बार्टोमेउ और उनका बोर्ड क्या कर रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। Back in 2017, suddenly Neymar announced he's leaving Barcelona for PSG. Another hit to the squad. And after that, Andre Iniesta announced his retirement. And guess what guys? Same old story. There is no replacement for these type of player. And suddenly Barcelona started losing their identity. I'll tell you how. The time Neymar left, Valverde became the head coach of Barcelona. And I don't know what happened, how he managed the team. Nobody was happy with him. Messi himself. नेमार का रिप्लेसमेंट लाया जा रहा है with a big money, but he's not playing those player on a right position. They bought Dembele, who's a injury prone. I don't know why. And मैंने इतने सालों में एक चीज़ नोटिस करी है गाइस, बार्सिलोना slowly losing their trust in their academy, which is known as La Masia, जिन्होंने कितने बड़े प्लेयर्स बनाए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, Xavi Hernandez, Andre Iniesta, Rafinha, Thiago, Lionel Messi himself. Why? I don't know why they are losing their trust from La Masia. There was a time जब Barcelona used to make stars. They don't used to buy stars. And now they are spending their money on big flops. और guys, इंटर कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं अब जब से यूसुफ बार्टोमेउ बार्सिलोना के प्रेसिडेंट बने हैं। इंटर कॉन्फ्लिक्ट कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देयर इज़ अ गाय नेम विक्टर फॉन्ट. He's the
furious rival of Josep Bartomeu for president post. He openly criticized club and player and club's decision. कहने को ही अपने आप को वेल विशर बोलते हैं, बट आई डोंट फील, मैं जब भी इनके कमेंट्स देखता हूँ, ही इज ओपनली क्रिटिसाइजिंग एवरीवन. तो ऐसे में इंटर कॉन्फ्लिक्ट्स ही इतने ज़्यादा हैं क्लब के अंदर, तो क्लब कैसे स्टेबल होगा. और एंड में क्या हुआ, क्लब इज नॉट एबल टू परफॉर्म, दे लॉस देयर आइडेंटिटी. 2017-18 UEFA Champions League season, Barcelona got eliminated by Roma in a comeback. Can you believe it? 2018-19 season, UEFA Champions League, Barcelona eliminated by Liverpool in a comeback again. और इस साल तो they've been embarrassed, literally embarrassed by Bayern Munich. They scored 8 goals against Barcelona in a single match. Can you believe it, guys? What we can expect from Barcelona? एक टाइम था जब बार्सिलोना अपोनेंट्स के दिल में एक डर पैदा कर देती थी. मतलब आई यूज्ड टू बी लाइक कि ये टीम तो गई इफ बार्सिलोना इज गोइंग टू फेस देम. एंड नाउ द टाइम हैज गॉन, नोबडी स्केयर्ड ऑफ बार्सिलोना. और इस एम्बैरसमेंट के बाद बाय बायर्न म्यूनिक, मेसी डिसाइडेड टू लीव. इंस्टेड ऑफ मेसी को एक अच्छा फेयरवेल देने की जगह बार्टोमेउ बोर्ड ने क्या किया, मेसी के मुंह पे कॉन्ट्रैक्ट फेंक के मार दिया. और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो भी क्लब मेसी को ख़रीदना चाहेगा उससे बार्सिलोना को 700 मिलियन यूरो देने पड़ेंगे. इज़ इट पॉसिबल? नो. आई मीन Bartomeu and board totally came out as a villain. और अब एक चीज़ तो क्लियर है गाइस, नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में Bartomeu हमें नहीं दिखने वाले हैं. Someone is new going to take over as a president, but Bartomeu को क्लब का ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट बनना था. इन्हें अपनी खुद की एक लेगेसी सेट करनी थी. एंड लुक व्हाट ही डिड, ही टोटली डैमेज बार्सिलोना. एंड आज हम किस सिचुएशन में हैं, मेसी वॉन्ट्स टू लीव बार्सिलोना. वैसे तो गाइस आज मेसी ने खुद कंफर्म कर दिया है दैट ही इज़ गोइंग टू स्टे. आई नो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर मेनी बार्सिलोना फैंस, बट गाइस दिस इज़ द लास्ट सीजन ऑफ मेसी इन बार्सिलोना शर्ट. सच अ सैड एंडिंग टू द स्टोरी. मेसी ने खुद कंफर्म करते हुए कहा कि बार्सिलोना होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, और मैं इस टीम को कोर्ट में नहीं ले जाना चाहता. आई डोंट वांट एनी लीगल फाइट विद बार्सिलोना. सो 2021 जून मेसी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा एंड ही इज़ गोइंग टू लीव ऑन फ्री. आई डोंट नो, बट मेसी को बार्सिलोना में खेलते हुए देखना विदाउट अ हार्ट, इट्स सो सैड. डोंट नो गाइज वेयर ही इज़ गोइंग to play his football next year, but let's show our support to Messi. So guys, आज के लिए इतना ही था. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो. So guys, please share, like and subscribe to our channel. और हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए गुड बाय गाइस.